Yes, sir. Start. Hello everyone. Hello. Is my voice clear? Yes, ma'am. And you can see my screen, right? Uh, yes. Okay, so happy evening. This is guys, are you ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just Okay. dropping. So your voice is not clear. Happy evening everyone. This is Lavina Manwani and today I'm going to present a presentation on the topic psychology. So first of all, the reason that I have chose this topic for today is because we are always told in schools that we should at least know the basic information about math, science and history. But why don't we want to know the basic knowledge of a human mind, of a human personality? We are surrounded by humans, we live with humans, like we are humans. So we want to learn about everything, but why don't we want to learn about ourselves? So just so just so you all know the basics of your own selves, that is why I have choose this topic for today. So without any further ado, let's start. So first, the very basic question arises: what is psychology? So basically, psychology is the study of mind and behavior. In psychology, we observe the behavior of the person and how in what way does the person thinks and why do they behave in a certain way, and how the environmental factors like the surrounding they live in and the social forms and everything affects their behavior. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. So the very first thing that we need to understand is personality. हम सब ने हमेशा सुना होगा कि हर किसी की अपनी अलग पर्सनालिटी रहती है एंड हमें जज नहीं करना चाहिए, बट क्वेश्चन ये है कि पर्सनालिटी होती क्या है एंड हर किसी की डिफरेंट पर्सनालिटी होती क्यों है. ऑल राइट, तो हम ये समझेंगे एज लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बैटमैन. आई एम श्योर यहाँ पे सारे बॉयज ने तो बैटमैन देखी होगी. एम आई राइट? Yes, you're right. Guys, Yeah. okay. You need to respond faster, all right? Yeah. So, what happened that when he was a kid, he witnessed the murder of his parents by some criminals. All right. In Yes. that moment, he felt hatred and anger. But because he was a kid and he was not capable enough to take the revenge, he took it upon himself to become fearless and brave so that he can take a revenge. All right. Okay. He swore that he will fight all the criminals and punish them. So, to do so, he trained himself to become fearless because, of course, we are not always fearless. We have to become. So, under the guidance of various fighters and criminologists, he trained himself to use his mind to the fullest. All right. Yeah. So now you will ask that how will we understand personality through this? But if we observe that because he witnessed such a hurtful thing in his childhood, that's why he set a goal. All right. He wanted to become fearless because he wanted revenge. Correct. Right. So the environmental factor is the important thing that affected his personality. So also the emotional pattern, if we see Batman, if we observe the movie, Batman doesn't trust everyone so easily, but he is willing to risk his life for everyone.
right? Yeah. Because he doesn't want another kid to lose his parents like he did, Correct. right? So you know True. what we observe in our childhood, what the problems we face, and the maybe as someone is spoiled, many kids are very much spoiled at home, so they develop a personality where they don't care and they'll just spend the money like that. So everything we face in our childhood, the way we are raised, is how we become what we are today. Correct. Am I clear? Yeah. Are there any Um, questions? yes. You can use Hindi here even. Some of the students are here. Explain once more. तो बैटमैन की जो स्टोरी थी उसमें ऐसा हुआ था कि जब वो छोटा था तो कुछ रॉबर्स ने उसके पेरेंट्स को उसकी आंखों के सामने मार दिया था. ऑलराइट. सो Correct. क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत छोटा था तो ऑफ कोर्स वो इतना स्ट्रांग नहीं था, ना ही उसकी मेंटल एबिलिटी थी कि वो उससे बदला ले सकता है. Correct. तो अब उसने कसम खाई कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं सारे क्रिमिनल्स को पनिश करूंगा और मैं कभी एक क्राइम कमिट नहीं करूंगा. Okay. राइट. Yeah. तो क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके पेरेंट्स को मारा गया, तभी उसकी पर्सनालिटी बनी फियरलेस एंड ब्रेव. ठीक है. Yes. और वो इजीली लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता था. ठीक है. बट वो उनके लिए अपनी जान देने को तैयार था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जैसे उसने अपने पेरेंट्स को खोया कोई और अपने पेरेंट्स खोए. Correct. ठीक है. तो ऐसे ही हमारे अलग अलग चीजें जो हम अपनी लाइफ में विटनेस करते हैं या जो अलग अलग किस्से होते हैं उनसे हम अपनी एक पर्सनालिटी फॉर्म करते हैं. एम आई क्लियर? Yes. So that is the reason why different people have different personality, because उनकी अलग अलग लाइफ की स्टोरी होती है. All right? Yeah. Right. So should we move on to next topic? Yes. Okay. Now the next topic is ideal self and real self. तो हम बैटमैन का एग्जाम्पल वापस लेंगे. तो जब वो जो बचपन में था वो उसके बहुत सारे डर थे और वो कमजोर था, वो उसका रियल सेल्फ था. ऑल राइट गाइस? Yes. We are listening you. You just go further. Okay. No problem is there. ऑल राइट. सो जब वो जो बनना चाहता था फियरलेस और वो बड़े होके सबसे स्ट्रांग बनना चाहता था और वो क्रिमिनल्स को पनिश करना चाहता था, तो वो था उसका आइडियल सेल्फ. ऑल राइट. हम जो लोग शीतल अकेडमी में आते हैं उनने काफी बार ध्यान दिया होगा कि सर हमसे अक्सर पूछते हैं, where do you imagine yourself after 5 years? This is the very common question that he asks everyone. तो जो आप अपने आप को 5 साल बाद इमेजिन करते हो वो आपका आइडियल सेल्फ है. आप वो बनना चाहते हो और आज जो आप हो वो आपका रियल सेल्फ है. Am I clear? Yes. Okay. So the next topic is all behaviors are learning from our environment. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं यहीं से. लाइक वी हैव लितेश सर हियर, राइट? Yes. एंड सृष्टि. ठीक है. तो अज्यूम करो कि इन दोनों को ओके तो Okay. ऐसा अज्यूम करो कि जब ये दोनों छोटे थे, ऑल राइट, तो Yes. हमने सृष्टि को रूम ए में बिठाया. ठीक है. Okay. और हमने लितेश सर को रूम बी में बिठाया और हमने दोनों रूम में एक एक व्हाइट कलर के चूहे छोड़ दिए. Oh. ठीक है. तो Yeah. अब क्या होगा, बिकॉज ये दोनों बहुत छोटे हैं. ठीक है. लाइक इमेजिन लाइक 3-4 इयर्स के. Okay. अब क्या हुआ, जब भी सृष्टि उस चूहे से खेलती थी तो जैसे ही टच करती थी वो चूहा उसे काट लेता था. ठीक है. और फिर वो रोने लग जाती थी. Yes. बट जब लितेश सर उस चूहे को टच करते थे तो चूहा उनके साथ खेलता था एंड लाइक या तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था. ठीक है. Yes. Yes. तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये दोनों आप बड़े होंगे, सृष्टि
she will develop a fear for mouse or Yes. any white fluffy objects, right? But similarly, Correct. Litesh sir, he will start liking mouse. He will not be afraid to play with them. Correct. ठीक है, जब हम भी कोई चीज करते हैं, समझो अब मुझे मेरा एग्जांपल ले लो, ऑल राइट, मैं और मेरा भाई एक सगा, ऑल राइट, तो जब मैं उससे बुलाती हूँ दैट यू आर अ डॉग, ओके, Okay. तो Okay. घर वाले हंसकर और छोड़ देते हैं, बट व्हेन ही टेल्स मी दैट यू आर अ डॉग, तो उसे खींच के एक चाटा पड़ जाता है. Neeraj, just mute yourself. ऑलराइट, तो जब वो मुझे बोलता है दैट यू आर अ डॉग, तो उसे खींच के एक चाटा पड़ जाता है. Okay. तो अब जब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो मैं सबके सामने भले उसे कुछ भी कह दूंगी, बट वो सबके सामने मुझे कुछ कहने से डरेगा. Correct. तो हमारी कौन सी बात पे एनवायरनमेंट का कैसा रिस्पॉन्स आता है वो डिसाइड करेगा कि हम वो चीज वापस रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे. Okay. हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे नॉर्मल लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गालियां नहीं देते हैं, वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं होती है. पर Correct. वहीं कुछ लोग रहते हैं जिन्हें जो लाइक जो खुलम मतलब उनके डेली बात करने में ही गालियां रहती है, वो एक सेंटेंस Yeah. नहीं बोल सकते किसी गाली के सिवाय, Hmm. बिकॉज व्हेन दे वर डेवलपिंग दिस बिहेवियर, Okay. तो जो पर्सन इजीली गालियां देता है, उनके पेरेंट्स ने कभी उन्हें या तो मना नहीं किया या तो कभी उन्हें किसी ने अपोज नहीं किया कि ये गलत बात होती है या ये नहीं कहा जाता. Yeah. दैट्स व्हाई वो चीज को रिपीट करते रहेंगे और वो फाइनली उनका बिहेवियर बन जाएगा. Correct. Am I clear? Yes. Yes. Any questions? No questions. We'll take the questions after finishing our topic. Okay. Yeah. So we'll move on to the next. So guys, please pay attention in this one. It's a little in mind. तो आइसबर्ग, ओके, तो जब एक थियोरी आई ह्यूमन माइंड को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उन्होंने उसे कंपेयर किया एक आइसबर्ग के लिए. और जिन लोगों को नहीं पता कि आइसबर्ग क्या होता है, तो टाइटैनिक का जहाज जैसे ठोक कर डूब गया था, दैट इज एन आइसबर्ग. ऑलराइट, इट्स मतलब एक पीस ऑफ आइस जो सी में फ्लोट करता है, उसे आइसबर्ग कहते हैं. ठीक है. Correct. तो अगर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो जो आइसबर्ग का ऊपर का पार्ट है, दैट इज द कॉन्शियस माइंड. हम सब लोग अभी उस कॉन्शियस माइंड में. Okay. हम लोग जो हमारा डेली टू डेली एक्टिविटी करते हैं, ये बात करना, जो हम प्रेजेंटली अभी हैं, हम एवरीडे अपने कॉन्शियस माइंड में रहते हैं. ऑलराइट. Yeah. और जो सबसे बैक साइड ऑफ द ब्रेन रहता है, दैट इज द अनकॉन्शियस माइंड. जो आपको कई कबार पता होगा कि हमारे पेरेंट्स अपने बचपन की कुछ स्टोरीज बताते हैं, बट हमें वो याद नहीं रहती. Yeah. You know, you never forget anything. Your human brain has the ability to remember since the day they were born till the day they die. उनको हर दिन की, हर एक सेकंड की, हर एक चीज याद रहती है, बट वो हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं रहती है, वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में रहती है. ओके. सो हमारे बचपन की मेमोरीज हो गई, या जो चीजें हमें याद नहीं है फिलहाल, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में. अनकॉन्शियस माइंड इज, you can never reach your unconscious mind unless you are attending a therapy. Okay. अगर आप लोगों ने मेडिटेशंस किए होंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे आई थिंक सबने मेडिटेशंस किए हैं बिकॉज सर करवाते हैं. ऑलराइट, श्री श्री रविशंकर के मेडिटेशंस. सो व्हाट ही डज ड्यूरिंग दैट is take us in a unconscious mind. Our unconscious mind is the most peaceful place. All right, हमारी सारी मेमोरीज, हमारी हैप्पी प्लेसेस, हमारी सैड प्लेसेस, सब कुछ यहाँ पे रहता है. तो जब आप कोई मेडिटेशन करते हैं, जब आप कोई थेरेपी रहते हैं, सो यू गो इन योर अनकॉन्शियस माइंड. ऑल राइट. Yes. और इन सब के बीच में ये पानी का लेयर दिख रहा है सबको.
Yes. That is the pre-conscious mind. इस प्री-कॉन्शियस माइंड में जो चीजें आपको पता है, जो चीजें आपको याद है, वो सब यहाँ रहती है. ऑल राइट. बस Okay. हम अभी एक्टिवली उनके बारे में सोचते नहीं है. Okay. Right. So is that clear to everyone? Yes. 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 So why I brought up this topic of human mind is because I wanted you all to know about id, ego and the super ego. All right. So Okay. Yeah. मान लो अब like id is like the devil on our shoulder Okay. and our super ego is the angel on our shoulder. Okay. So And super ego in white Yeah, super ego in white. and ego is that in red. Okay. No, that's id. Id, the That's very it. first Okay. thing. Okay. Okay. So id एक बच्चा है. ऑल राइट. बच्चे कैसे रहते हैं, उन्हें जो चीज चाहिए वो चाहिए. हालात कैसे भी हो, कोई चीज कैसी भी हो, उन्हें वो चीज चाहिए. और अगर नहीं मिली तो चिल्लाएंगे, झगड़ा करेंगे, या they throw tantrums. Yes. Yeah. And the super ego is like the सबसे grown up पार्ट रहता है आपका. वो आपको कहेगा कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है, ऐसे नहीं कहा जाता. It's basically all the good things. So what happens, and this ego, the ego in the middle is you. ये दोनों कितना भी बोल लें, but decide at the end आप ही करोगे कि आपको क्या करना है. Correct. ऑलराइट. आपने बहुत बार ये सुना होगा कि लोग कहते हैं कि नॉलेजेबल पर्सन अपना डिसीजन हर चीज सोच कर लेता है, और क्या सही है क्या गलत है उनका उन्हें ज्यादा अंदाजा रहता है. राइट. Yes. इट्स बिकॉज जो पर्सन के पास नॉलेज है, एंड इट्स लाइक मेच्योरिटी. हम जैसे जैसे मेच्योर होते हैं ना, एंड इफ यू मेच्योर इन द राइट वे, तो आप अपने इस सुपर ईगो को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो. Okay. सब सिचुएशंस देखकर, सब हालात देखकर, और फिर ही आप कोई चीज डिसाइड करते हो. और ये जो इड का साइड है ना, उसको आप सप्रेस कर देते हो. Yes. Okay. तो जब हम कहते हैं कि ये तो इतना बड़ा हो गया पर अभी भी मैच्योर नहीं है, क्योंकि ये जो इड वाला उनका साइड है ना, वो उनसे जो भी चीज मांगेगा वो उन्हें दे देंगे. इट्स लाइक कुछ लोग अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, बिकॉज फाइनली दे डू व्हाट द इड. मतलब अगर आपसे कोई बच्चा कहेगा कि रात को 2 बजे मुझे चॉकलेट चाहिए, राइट. Okay. सो ये सुपर ईगो आपसे कहेगा कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल रात के 2 बज गए हैं, ऊपर से दुकानें बंद होंगी, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इस टाइम पे चॉकलेट ला सकें. Okay. ठीक है. अब ईगो जो कि आप हो, या तो आप इमेच्योर्स की तरह उस बच्चे की बात सुनकर और निकल पड़ोगे गाड़ी लेकर, राइट. Yes. या तो आप उस सुपर ईगो की बात सुनकर चुपचाप से सो जाओगे. करेक्ट. सो कभी कभार हम कहते हैं कि ये बच्चे तो कितने बिगड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें जो चीज जिस टाइम पर चाहिए ना, उन्हें वो दी जाती है, जिसके कारण उनका ये जो इड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है. तो ये चीज हमारे लिए जाना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम वी आर लाइक मोस्टली वी आर हियर टीनेजर्स, एंड in this, like for today we need to understand that हमें क्या चाहिए, सिर्फ वो जिद करके और लेना इम्पोर्टेंट नहीं है. मुझे एक्टर बनना है, तो मेरे मम्मी पापा माने नहीं माने, सिचुएशन वैसी हो नहीं हो, क्या भी हो, पर मुझे बनना है. That's not done. You need to, guys, please mute yourself. Okay. So आज की डेट में हमें अपने आसपास देखना है कि सिचुएशंस कैसी हैं.
लाइफ कैसे चल रही है। अब अगर आप इस टाइम में इवन ड्यूरिंग कोविड-19 यू विल से कि यार मैंने तो एग्जाम में टॉप किया पापा, मेरा अभी के अभी चल के एडमिशन कराओ। सो डू यू थिंक दैट्स सेफ? So, as we grow, we need to understand that हर चीज जो हम चाहते हैं या हर चीज जो हमें चाहिए वो हमें मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कैसी सिचुएशन है, कैसे हालात हैं, सामने वाले को कैसा फील हो रहा है, वो जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। All right? Yeah. It's not just important to satisfy our ego. Am I Okay. clear? Yes. Okay. So should we move on? Yes. Lavina ma'am, Yeah. this meeting will be ended in 6 minutes. So shall we continue another meeting? Can you increase the time? No, sir. Sir, for that you need to do the meeting for at least 2.5 hours. Sir, Yeah. So we'll for that, just leave them. sir, for that you need to. We all can join this on same the link again. Okay. So we'll rejoin. Okay. Once it Okay. stops, we'll rejoin after 6 minutes. Okay. We have Okay. come till So observational Yeah, topic. right. Next is observational learning. हमारे पेरेंट्स कितनी बार बोलते हैं कि ढंग के लोगों को दोस्त बनाया करो, Yeah. क्योंकि इनके साथ रह के तुम भी बिगड़ जाओगे। सो बेसिकली जो हम देखते हैं अपने आसपास, जैसे लाइक कौन है यहाँ पे, अच्छा कौन है यहाँ पे, सृष्टि, लेट्स टेक सृष्टि एंड मी, ओके, वी आर रियली ग्रेट फ्रेंड्स। सो बिकॉज सृष्टि को हर लाइन में पागल वर्ड यूज करने की आदत है और मैं उसके साथ बहुत ज्यादा घूमती हूँ, तो मुझे आदत हो गई है पागल बोलने की। ऑलराइट, Yeah. so this is called observational learning. It is learning that occurs by observing others. Correct. Usually हमें मजाक लगता है जब हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमें दोस्त देखकर बनाने चाहिए, हमें अपना सर्कल अच्छा रखना चाहिए। Usually feel like कि पेरेंट्स तो ऐसा ही बोलते रहते हैं, right? But guys, our brain have that tendency कि जो चीज हम बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं ना, हम उसे अपने आप फिल्टर करके और पिकअप कर लेते हैं। You can't control that. आपका माइंड वो चीज पिकअप कर ही लेगा। अगर कंटिन्यू आप रोज 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 पागल पागल ये वर्ड सुनोगे ना, तो एट द थर्ड और फोर्थ डे यू विल स्टार्ट सेइंग दैट अगेन एंड अगेन। Correct. सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू लुक अराउंड। आप किससे बात कर रहे हो, आप किसके साथ घूम रहे हो, बिकॉज हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा जी चुके हैं ऑलरेडी। यही चीज जब हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना, तो यही हमें स्टूपिड लगती है, बट यही चीजें जब हम बुक्स में पढ़ते हैं ना, देन इट्स मीनिंगफुल फॉर अस। Correct. Okay, so when our parents say that your friends are like this, you should not hang around with them, so of course they mean it because they saw something. Yes. अगर आप अगर आप देखते हो कि हाँ, like we sit a lot with Joshi sir in his cabin. Why? Because he tells us those things which will be important for us in the future. All right, हम रोज उस अकेडमी में आते हैं बिकॉज हमें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है और कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है, जिसके कारण हमारे पेरेंट्स हमें मना नहीं करते। Yes. और वहां से हम भले ही हमारा टाइम हो 6 से 8 का, बट मे बी हम कभी कभार 8:30 भी घर पे आए तो कोई कुछ नहीं कहेगा, बिकॉज दे नो दैट ही इज टीचिंग अस द राइट थिंग। वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम देयर। बट सिमिलरली अगर आप किसी ट्यूशन के बाद थोड़ी देर अगर लेट आओ, तो पेरेंट्स इंस्टेंटली नो दैट आप अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे खड़े होकर टाइम पास कर रहे थे, राइट? Yes. When we go in this academy, we meet people that are more knowledgeable than us. Of course, sir is very more knowledgeable than all of us. So when we observe what he does, जब हम observe करते हैं कि वो कैसे करते हैं या वो कौन सी चीज ऐसी करते हैं जो हमें सीखनी चाहिए, how he controls his business, तो अगर हम चीज वो habits observe करेंगे, so we'll pick it up. Yes. Correct. So it's important, it's very important that you know कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, आप कैसी दोस्ती रखते हो और आपके क्लासमेट्स कैसे हैं, बिकॉज कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आप वो चीजें पिकअप करोगे।
और अगर आप आज वो चीज रिपीट नहीं करते तो आप 2 साल बाद वो चीज एक बार तो अपनी लाइफ में रिपीट करोगे ही. इट इज फिक्स्ड. Yeah. So it is important that we know who we are hanging out with. All right. Yes. Yes. So let's move on. Okay, so I don't think we need to rejoin because this is the last topic, but it is very important. Okay. Okay. So first of all, I'll say what is mental hygiene. So आजकल even it's not about कि सिर्फ बड़ों को स्ट्रेस रहता है या सिर्फ बड़ों को डिप्रेशन रहता है. हमने अभी लॉकडाउन में देखा है कि कितने, if you have heard about Sushant Singh Rajput. Yeah. That was a major It is case. said, yeah, because he was suffering from depression and a lot of stress. All right. Yeah. तो to keep, और आज के डेट में अगर हम सब आप सब का ही ले लें तो आजकल की स्टडीज या आजकल का माहौल ही ऐसा है कि स्टूडेंट्स को 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को स्ट्रेस रहता ही है. या तो घर का माहौल ऐसा होता है, या तो स्कूल का माहौल ऐसा होता है, या तो पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है. तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू नो हाउ टू de-stress yourself. Yes. All right. So the first is, if you cannot change the situation, then change your reaction. Correct. तो अगर आपके फ्रेंड को आदत है कि हमेशा आपके पास आकर कुछ भी बोलता रहेगा, कुछ बहस करेगा, एंड देन आपका झगड़ा हो जाएगा. ऑल राइट. सो आप उसे तो नहीं रोक सकते ना झगड़ा करने से. No. Correct. बट यू कैन स्टॉप योर रिएक्शन. अगर आपको पता है कि आप बहस करना स्टार्ट करोगे एंड देन इट विल क्रिएट अ सीन, सो देन जस्ट स्टॉप रिएक्टिंग टू इट. Okay. अब लॉकडाउन में हम लोग सिचुएशन तो नहीं चेंज कर सकते. हम कोविड-19 को उठा के बाहर तो नहीं कर सकते. No. Correct. अब उसी चीज का स्ट्रेस लेना, या उसी चीज का स्ट्रेस लेना कि यार घर पे तो बोर हो रहा है, यार घर पे तो ऐसा है, यार घर पे तो वैसा है. इंस्टेड लेट्स लुक इन द पॉजिटिव साइड. आजकल की लाइफ इतनी बिजी है कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ फैमिली मोमेंट्स स्पेंड करने का. Yes. इस साल से पहले ऐसे कितने लोग होंगे जिनने अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ मनाया होगा. Yes, that is one true.